Hello, hi, I am Mr. PG Pawar, Director of C Classes, New Bombay. We have three branches, Kamote, Rodbali and Khargar. Today I am going to teach first chapter of Science for State Board. First chapter deals with the chemical reactions and equations. This is the first video. Let us revise in short about the previous standard. First is compounds are formed by chemical combination of elements. Secondly, the stable electronic configuration they try to occupy as per octet rule. And third is chemical change is a permanent, physical changes are temporary and can be reversed, reversible. ये हम लोग प्रीवियस स्टैंड में जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तब क्या होता है कि देखिए elements are trying to combine together to form a new compound. Now let us observe a few natural phenomena. First is milk turn into curd, cooking of food, digestion of food in stomach, iron pan exposed for long time in a humid air. In everywhere you will observe something. When milk is converted into curd, there is some chemical reaction happening. Even cooking of food is a chemical reaction. Digestion of food, even pan, suppose it is corroded, that is also a chemical reaction. Some activities are given in your book. First, heating of limestone. limestone को अगर हीट करेंगे तो क्या होता है? उस वक्त वहाँ से कुछ गैस निकलता है एंड लाइमस्टोन न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है. एडिशन ऑफ जिंक डस्ट टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एडिशन ऑफ K2CrO4 potassium dichromate, potassium chromate to barium sulfate solution, there is a change of color. Phthalic anhydride in evaporating pan. ये सब एक्टिविटीज को अगर हम देखते हैं तो हम एक सोचते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. Chemical reaction is a process in which some substances undergo bond breaking and forming new substances by forming new bonds. मतलब पहले जो सब्सटेंस था उसके बॉन्ड ब्रेक हुए, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में इट divided into 2 or 3 or many fragments. Those fragments combine together to form a new bonds and new substances are formed. This is simply a chemical reaction. In chemical reaction, initially some substance is there and it is getting converted into another substance with itself by breaking itself or combining with others. तो जो भी पहले होता है उसको बोलते हैं reactants और जो बाद में बनता है उसको बोलते हैं products. Actually now see chemical equation कैसे लिखा जाता है. Let us observe the example. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, aqueous solution, जिंक डस्ट उसमें डाला, देन अ प्रोडक्ट वी आर ऑब्टेनिंग दैट इज जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर सेपरेटेड. ये इक्वेशन लिखते वक्त एक देखा हमने लेफ्ट हैंड साइड में हमने रिएक्टेंट्स लिखे. ये दो रिएक्टेंट थे, दोनों आपस में रिएक्ट हुए और दोनों के बीच में प्लस साइन लिखते हैं. कभी कभी more than 2 reactants are there. At that time we are writing 2 plus signs, 3 plus signs like that. And in RHS also there are 2 products. In between them there is a sign. And the arrow indicates that the reaction is proceeding in that direction. और इसको अगर सपोज सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाए, फॉर्मूला फॉर्म में, कॉपर सल्फेट CuSO4, Zn एरो दिखाया, यहाँ बीच में प्लस साइन, देन ZnSO4 प्लस कॉपर. अब इस इक्वेशन को देखते हैं. इस इक्वेशन को देखने के बाद भी पता लगता है LHS RHS दोनों के एलिमेंट्स को काउंट करने की कोशिश करते हैं. कॉपर इधर 1 है, उधर भी 1 है. जिंक यहाँ पर 1 एलिमेंट 1 एटॉम है, उधर 1 एटॉम है. SSO4 मीन्स जितने भी एलिमेंट्स के एटॉम्स LHS में है उतने ही एटॉम्स अगर RHS में है, then that equation is called as a balanced chemical equation. बट नॉर्मली हम जब भी लिखते हैं कई बार
दिस इज टिपिकल एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल ऐसा है आपके सामने रख रहा हूं कि जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बट देयर आर सम रिएक्शंस विच नीड टू बी बैलेंस्ड। LHS RHS के नंबर ऑफ एटॉम्स इक्वल नहीं होते। तो सी दिस रिएक्शन राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कॉपर सल्फेट ZNS इट इज सॉलिड। हाँ, रिएक्शन लिखते हो तो और एक ये लेना पड़ता है कि सिर्फ स्केलेटन लिख दिया या सिंबॉलिक फॉर्म लिख दिया, दिस इज नॉट इनफ। वी हैव टू मेंशन द स्टेट, फिजिकल स्टेट्स, वेदर इट इज सॉलिड और एक्वियस। एक्वियस मतलब सॉल्यूशन मेड इन वाटर, एक्वा, copper solution, and heat is involved in that. In some chemical processes heat is coming out, those chemical processes are called as exothermic reactions, and reactions in which heat is coming in, means heat is required to proceed that reaction, are called as endothermic reactions. सपोज कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हीट करते हैं, इट इज लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को हीट करने के बाद में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है एंड ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। दिस रिएक्शन हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ हीट, दैट्स व्हाई डेल्टा मतलब ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल, इसको डेल्टा बोलते हैं, और इट इंडिकेट दैट हीटिंग प्रोसेसेस, दिस प्रोसेस इज हीटिंग। इन सम केमिकल रिएक्शंस उसका कंडीशन देना पड़ता है, कितना प्रेशर पर है, कितना एटमॉस्फेयर पर है, मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर, कितना टेम्परेचर पर है, या एनी कैटलिस्ट इज देयर। See this next example, vegetable oil. Vegetable oil is a liquid, उसमें H2 गैस पास करते हैं, देन 60 डिग्री टेम्परेचर पर इसको निकेल कैटलिस्ट ऐड करने के बाद में वनस्पति घी बनता है। वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनते वक्त हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, मतलब ये टेम्परेचर, कैटलिस्ट, दीज आर आल्सो नेसेसरी। समटाइम इन सम केमिकल रिएक्शंस उसके कॉन्सेंट्रेशन लिखना जरूरी होता है, इसके जो है कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर या 2 मोलर जो भी है ये भी लिखना जरूरी होता है। मीन दिस इज सिंपली अ प्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन लिखते वक्त क्या क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट शुड बी ऑन लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट शुड बी ऑन राइट हैंड साइड, इन बिटवीन देम द एरो शुड बी पॉइंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, in between them there is a possibility of addition plus sign when there are more than one reactants or more than one products। उसके फिजिकल स्टेप्स लिखने चाहिए, टेम्परेचर, कैटलिस्ट वगैरह लिखना चाहिए, जैसा हमने बोला कि दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। देयर आर सम रिएक्शंस नीड टू बी बैलेंस्ड, तो वो बैलेंस कैसे करते हैं नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।